Hello students of class 7th. In this video I'm going to take up your numericals. So without taking too long, let's move towards our first numerical. First numerical is a motorcycle rides from Delhi to Gurgaon covering a distance of 63 kilometers. So your distance is equal to 63 kilometers and time is 1 hour 45 minute. 1 hour 45 minutes. So 1 hour, and this 45 minute is to be converted into hour. So 45 divided by 60. Now it will be also in hour, so I remove this h here, hour is written here. So when we solve this, we get 15 threes are 45 and 15 fours are 60. So your time is 1 all 3 upon 4. If we solve this, we get 7 upon 4 hours. Okay, now moving ahead, so speed we have to determine. So speed is equals to distance upon time. So distance is 63 kilometers and time is time. So time is your 7 upon 4. So we will replace 7 upon 4. So 4 will go into the numerator. So 63 into 4 upon 7. 7 nines are 63. So your speed becomes 36 kilometer per hour. So that is the required answer for the first numerical. Now moving ahead to the second numerical. In the second numerical, an athlete completes 800-meter race in 2 minutes. So your distance is 800 meter and time is 2 minute. Now this 2 can be converted into seconds. So 2 into 60, that is 120 seconds. So now speed is equals to distance upon time. Distance is 800 meters and time is 120 seconds. So 0 0 will get cancelled and at t इसको मैं 4 से कैंसिल कर सकता हूँ. सो 20 आएगा एंड यहाँ पे 30 आएगा. सो 20 अपॉन 30. You can cancel the 0. Sorry, we will have 3 only here. So this 0 will remain here and now we have 20 upon 3. When we solve it out, we get 6.67 meter per second. A correction is there. इनिशियल वो यहाँ पे बेसिकली हमारा 800 था एंड यहाँ पे 120 था, तो एक ज़ीरो हमारा पहले कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं बचेगा, तो विच मीन्स ये जो ज़ीरो मैंने बाद में लिखा था, दिस ज़ीरो विल नॉट बी हियर. So I hope it is clear to you. Your answer is 6.67 meter per second. Now moving ahead to question number 3. In question number 3, uh, speed is given in kilometer per hour. So speed is your 90 kilometer per hour. This has to be converted into meter per second. So 90 किलोमीटर की जगह हम लिख देंगे अब ये किलोमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 1000 मीटर्स एंड डिनोमिनेटर में हमारा आर है, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 3600 seconds. Now you can see that these two 0 will cancel out. 9 tens are 90 and 9 fours are 36. These two 0 will cancel out, so this 0 will remain here. So now we have 9 tens are 90, so 90 will cancel out. Now we have this 10 and this 10, so 10 makes it 100 upon 4. So your answer will be 25 meter per second. So moving, I hope it will be clear to you. It's a simple question. एंड एक कन्वर्जन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं.
कभी भी आपको किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आप 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर जो आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो जो भी नंबर दिया है यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाई 5/18। आप डायरेक्ट कन्वर्जन पहुंच सकते हो। ये जो मैंने तरीका यहाँ पे बताया ये कंसेप्चुअल तरीका है, कैसे आखिर ये आता है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू नाउ। मूविंग ahead to question number 4. Again, question basically you have to calculate the average speed of a train. So distance covered is 1650 meters. So distance is 1650 kilometers, not in meters, and time is 22 hours. So speed is equals to distance upon time. Distance is 1650, time is 22. So बेसिकली इसको हम पहले 2 से कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 825 आएगा। नाउ 825 डिवाइडेड बाई 11। सो व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 825 upon 11. 11 7s are 77 and 11 5s are 55. So your answer is 75 kilometer per hour. Now moving ahead to the next question. Question number 5. An insect moves through 3.5 centimeter in 20 seconds. Calculate the speed in mm per second. Now your distance is question number 5. Your distance is given here 3.5 centimeter and time is 20 seconds. So now this centimeter is to be converted into mm. So distance is equals to 3.5 into 10. अब ये हमारा mm में आ जाएगा। मतलब कन्वर्जन आपको सीधा सा है, वेन एवर यू रिक्वायर टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू mm आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 35 mm आ जाएगा। नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस आपका 35 हो जाएगा एंड योर टाइम इज़ 20 सेकेंड्स। अब आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 7s are 35 and 5 4s are 20, तो 7/4। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप अगेन दिस न्यूमेरिकल विल बी क्लियर टू यू। ऑल दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन द सिंगल फार्मूला, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। करना सिर्फ ये है कि जो आपका किस यूनिट में स्पीड चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस एंड टाइम की वैल्यूज़ को आपको चेंज करते रहना है। लाइक अगर जो स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में चाह रहा हो तो आपका टाइम मीटर में होना चाहिए एंड टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। अगर जो स्पीड मीटर पर मिनट में चाह रहा हो तो डिस्टेंस आपकी मीटर में होना चाहिए एंड टाइम आपका मिनट्स में होना चाहिए। इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कि न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 में basically the total distance traveled by a person in 40 minutes when his uniform speed. Okay, so speed यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सा एक क्वेश्चन है। स्पीड आपको 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है एंड टाइम जो है आपका वो 40 मिनट्स दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड में जो टाइम की यूनिट है वो आर है, यहाँ पे क्या है मिनट्स है। तो पहले तो जो फर्स्ट चीज़ होगी आपकी ये कि या तो इस आर को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो या यहाँ पे जो मिनट्स दिए हैं इनको आप आर में कन्वर्ट कर लो। तो सेकंड ऑप्शन बेटर होगा। हमने क्या करा 40 डिवाइडेड बाई 60। तो जब 40 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट आपका किस में आ जाएगा आर में आ जाएगा। 0 0 आपको यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2s are 4,
2 3s are 6. So your time will be equal to 2/3 hours. अब हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है. सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड आपका 6 दिया हुआ है एंड टाइम आपका 2/3 दिया हुआ है. कैंसिल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर्स. ये आपका सेपरेशन है. दिस इज योर required answer. I hope it will be clear to you. Now moving ahead to question number 7. In question number 7, how much time does train takes to cover a distance of 507 kilometers from New Delhi and Lucknow? Average speed of the train. यहाँ पे again थोड़ा सा different question है. Your distance is given. Distance is 507 kilometers and time speed is given to you. So your speed is 72 किलोमीटर पर आवर. आपको निकालना है टाइम. सो यू नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो अब हम क्या करेंगे, टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे एंड ये जो स्पीड है उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे. सो योर फॉर्मूला बिकम्स टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो नाउ डिस्टेंस आपका कितना है 507 एंड स्पीड कितना है 72. अब आपको बेसिकली इसे डिवाइड करना है. मैं डायरेक्ट आंसर से लिख रहा हूँ. ओके, आई थिंक पीपल विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. अब इसको मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ. सो बेसिकली डिवीज़न में क्या होगा, मैं बेसिक जो हम लोगों को डिवीज़न मेथड है उसी को यूज़ करूँगा. सो 72 डिवाइड कर रहा है 507 को. सो 7 7 ज़ा 49 होता है आपका. so, सबसे पहले हम 7 टाइम्स ले जाएंगे. 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49. ये बेसिकली हमारा 50 हो जाएगा. अब जो आपका रिमेनिंग होगा वो 3 होगा. ठीक है, अब हम अपना कर दें. ये जो आपका 7 आया वो क्या होगा, आर में होगा एंड बाकी का जो रिमेनिंग होगा. सो बेसिकली हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, या कह दें आंसर का एक पार्ट आ गया 7 आवर्स. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर है 3 एंड ये हमारा 72 है डिविडेंड. तो अगर जो मैं इस पूरे आंसर को लिखना चाहूँ 7 ऑल 3/72, दैट विल बी योर टोटल आंसर. सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 24 टाइम्स जाएगा. सो योर आंसर इज नाउ 7 ऑल 1/24 आवर्स. बट ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 आवर्स हमारा अलग कर लेंगे एंड ये जो 1/24 आवर है उसको हम मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है. आप मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 60 से. सो नाउ अभी आपका ये मिनट में आ जाएगा. सो आप इसको डिवाइड करेंगे 24 2 ज़ा एंड 24 5 ज़ा. अब 60 को 24 से डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा तो आंसर यही आएगा. सो फाइनल आंसर जो आपका आया 7 आवर्स 2.5 मिनट्स. आंसर हम पहले वाला भी छोड़ सकते थे जो आया था. आप अभी मैं दिखाऊंगा आपको. 1 2 7 ऑल 1/24 is also a करेक्ट आंसर. नो प्रॉब्लम विद दिस आंसर. बट सिंस आपकी बुक में ही दिया हुआ है तो मैंने कन्वर्ट करके दिखाया कि कैसे आप आंसर पे पहुंच सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल हेडिंग टुवर्ड्स आवर लास्ट न्यूमेरिकल number 8. In question number 8 you have to determine the average speed. So average speed का फॉर्मूला हमारा होता है average speed is equals to total distance total d upon total time. So when we read the question, basically Ramesh, ये suppose this is the house of the Ramesh, this is house and this is the office. यहाँ से वो जाता है मॉर्निंग में एंड फिर इवनिंग में
वापस आता है। एंड डिस्टेंस कितना दिया है आपका 24.5 किलोमीटर्स। सो मतलब 24.5 किलोमीटर्स जाएगा एंड 24.5 किलोमीटर वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा वो दोनों को ऐड करने पे आएगा। एंड 24.5 को जब दो बार ऐड करेंगे तो 49 आएगा। यू कैन चेक बाय एडिंग। एंड जाने में उसे यहाँ पे जाते टाइम उसे 30 सेकेंड्स लगते हैं, 30 मिनट्स सॉरी लगते हैं, एंड आते टाइम उसे 40 मिनट्स लगते हैं। सो टोटल टाइम जो हो जाएगा आपका 30 + 40 दैट इज 70 मिनट्स हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू विल बी क्लियर अप टिल नाउ। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यू हैव टू डिटर्मिन द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट। सो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है एंड टाइम यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है एंड योर टाइम इज़ इन मिनट, और किलोमीटर पर मिनट में आपको निकालना है। तो इसका मतलब हो गया कोई भी कन्वर्जन हमें नहीं करना है, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। अगर जो यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड में चाह रहा होता वो मतलब ये जो मिनट था आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो या तो वो हो सकता है आपसे पूछता कि मीटर पर मिनट में निकालो। अगेन जब मीटर पर मिनट में पूछता तो ये जो किलोमीटर है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। इस तरह से मतलब जो यूनिट उसने पूछी होगी उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। नाउ योर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टोटल डिस्टेंस डी अपॉन टी स्टैंड्स फॉर टोटल। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 49, एंड जो टाइम लिया है वो 70 मिनट्स लिया है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले ये ज़ीरो यहाँ इसे हम रिमूव करके यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं। एक कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको पूरा डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। अब इस 4.9 को 7 से डिवाइड करेंगे 0.7 आ जाएगा। 0.7 किलोमीटर per minute. So students, with this we end up the numericals of this chapter 2 of your physics. So I hope all the numericals will be clear to you. If you have any problem regarding this, you are always free to ask me. Okay, thank you.